So, before asking which medicine, Kent ask a deeper question: who is the sick person? So, this is a new series on Kent philosophy, which is extremely tough and like frustrating to read. Let's make this frustration easier for you all. Let's start its first chapter, and you will realize it's on its own कि कैसे easy बनाया है, right? सो बेसिकली केंट लेक्चर्स देते थे एंड उसको फिर नोट डाउन किया जाता था एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड एंड सो उनका पहला लेक्चर था द सिक, हु इज़ द सिक पर्सन। एंड यही वो पैराग्राफ 1 में पूछ रहे हैं कि हु इज़ एक्चुअली सिक। बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने हर पैराग्राफ का कंक्लूजन आपके लिए निकाल रखा है, डीप में एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको वो बोरिंग टेक्स्ट रीड ना करना पड़े ऑन योर ओन। सो come, let's see those paragraphs. So paragraph 1 में we are seeing who is actually sick. Kent says disease doesn't belong to organs, tissues or pathology reports. Obviously we know that, being a homeopath we know कि we do not just focus on organ, tissues, pathology reports. That's what Kent also says. ठीक है, so it belongs to living person as a whole, as a whole individual हम देखते हैं, not just उसके organ, tissues या pathology report को. Since obviously we know that when a person dies, what left behind is a cadaver. And if that body, that organ, that tissue is that important, then what is that thing that left the body? Because organs ये सब कुछ तो उसके वैसे ही पड़े हुए हैं, right? So as a whole individual matters. Okay, the person is sick, not the liver, kidney, lungs, etc. alone. Okay, आगे देखते हैं. Disease starts inside, not outside. Disease it starts inside, not outside. Treating organs is equals to suppression or palliation. Treating the person is equals to cure. Ken clearly tells us the liver is not sick, the kidney is not sick, the lung is not sick, but the man is actually who is sick. Disease is a condition of the entire human being, not a single organ. If we treat only reports and scans, we miss the real disease. Okay. Paragraph 2 says men is more important than a body. Okay. So basically, एक men क्या है? He is a combination of intellectual, physical, emotional and spiritual thing. Okay. डिसीज ये सारे प्लेन्स को अफेक्ट करती है वन बाय वन. ओके, यहाँ से यहाँ से यहाँ सब चीज़ इफेक्ट होंगे. ठीक है, दैट्स व्हाट पैराग्राफ 2 सेज. इसको थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं आपको यहाँ से. सो बेसिकली बॉडी इज़ द ओनली आउटर मोस्ट लेयर, माइंड एंड विल आर डीपर, vital forces governs everything. Within outwards is how a disease should be thought of. Within outward is a disease should be thought of. Okay, अंदर से बाहर की तरफ देखना चाहिए. ठीक है, लाइक मन से पूरा. ओके, सो बेसिकली केंट क्या बोल रहे हैं कि मैन बस फ्लैश और बोन से मिला हुआ एक तत्व नहीं है. ही हैज़ अ माइंड, इमोशंस, माइंड, इमोशंस, इंटेलिजेंस जो उसके वाइटल फोर्स को गवर्न कर रही है. When disease comes, it disturbs the entire harmony. Okay, और सिर्फ बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करती है वो. Now paragraph 3 says disease is a dynamic disturbance. Disease is not just material but is dynamic disturbance of the vital force. Okay, सिर्फ मटेरियल नहीं है, right? Disease cannot be seen under a microscope. Sorry. Yeah. So disease cannot be seen under a microscope.
ओनली इफेक्ट्स आर सीन एज सिम्टम्स। डिसीज अपने इफेक्ट्स को किसके थ्रू दिखाती है? सिम्टम्स के थ्रू। तो पैथोलॉजी के अपीयर होने से पहले डिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? रीड दिस सेंटेंस अगेन। बिफोर पैथोलॉजी अपीयर्स वी ऑलरेडी हैव डिसीज दैट एग्जिस्ट. Pathology is basically the last stage. So, Kent makes a revolutionary statement. Disease is not something material. Why am I writing like slant? Okay, I'll write straight. So, disease is not something material. It is a dynamic. It is a dynamic disturbance of what? Vital force, right? And symptoms are only its expressions. Let's go to para 4 now. Para 4 says symptoms are the language of disease. That's so poetic and बहुत अच्छा sound कर रहा है, right? But yeah, यही fact है. Symptoms are the only way disease can express itself. Disease बात नहीं कर सकती. Disease cannot speak. Vital force suffering through symptoms. Okay, vital force अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है कि वो अब इक्विलिब्रियम में नहीं है? बाय सिम्टम्स. ईच सिम्टम्स इज वैल्यूएबल. यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी सिंगल सिम्टम भी. ठीक है, सिम्टम्स हमारे दुश्मन नहीं है. दे आर नॉट आवर एनिमीज. वो लैंग्वेज हैं किस चीज़ की? कि वाइटल फोर्स या बॉडी हमारी सफ़र कर रही है. एक मैन सफ़र कर रहा है. इफ वी सप्रेस सिम्टम्स, हम उस सिम्टम्स की, हम उस बॉडी की, हम उस वाइटल फोर्स की हेल्प को, जो चाह रहा है कि हम उसकी हेल्प करें, ओके, लाइक इफ वी सप्रेस सिम्टम्स वी साइलेंस द क्राई फॉर हेल्प, वी डोंट क्योर. ओके, फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं. हाईएस्ट सिम्टम इज ऑफ माइंड. हाईएस्ट सिम्टम क्या है? माइंड. मेंटल सिम्टम्स रिप्रेजेंट्स इनरमोस्ट डिसऑर्डर्स. Mind is closest to vital force. For chronic disease, first appeared symptom is mentally. Okay? Chronic disease के लिए पहला जो symptom appear होता है वो mentally ही appear होता है. Changes in will, emotions, behaviors are most important. So like chronic diseases अगर हम देखते हैं तो जो सबसे deepest चीज़ mentally वही हमारा पहला symptom होता है. लाइक हम फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी पैथोलॉजी. ओके, उसमें जो सबसे पहला चीज़ जो हमने पढ़ी है कि एक सेल को जितना ज़्यादा, लेट मी, ओके, आई प्रेफर मार्कर एक्चुअली. ओके, सो सेल को जितना ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, क्या मिलेगा? स्ट्रेस मिलेगा, वो अपनी पैथोलॉजी और ये सब कुछ उसका डिस्टर्ब होगा. तो बेसिकली सेल अडाप्ट करेगा. अडाप्टेशन. या तो अगर स्ट्रेस कंटिन्यूस रहा तो वो क्या करेगा? इरिवर्सिबल इंजरी कॉज करेगा. अब एक बार इरिवर्सिबल इंजरी हो गई, लेकिन जब तक वो अडाप्ट कर रहा है तब तक तो इट्स फाइन. तब तक कंसिडर कर लो कि इट्स एन एक्यूट डिसीज. ठीक है, तब तक कंसिडर कर लो कि इट्स एन एक्यूट डिसीज. बट जब वो इरिवर्सिबल होने लगी, लाइक स्ट्रेस अब बढ़ता ही जा रहा है, देन थिंग्स कम्स इनटू क्रॉनिक डिसीज. ठीक है, एंड क्रॉनिक डिसीजेस को क्योर करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ठीक है, तो वहाँ तक हमको केस अगर जा रहा है तो बहुत ही इंटेलेक्चुअली हैंडल करना पड़ेगा. लाइक उसके मेंटल सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, देन पैराग्राफ 6 सेज डिसऑर्डर्स ऑफ विल एंड अंडरस्टैंडिंग. डिसऑर्डर्स ऑफ विल एंड अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिकली हमने पिछले उस वाले उसमें क्या पढ़ा कि जो माइंड है, माइंड सिम्टम्स सबसे ज़्यादा ऊपर है. ठीक है, तो केंट मेंटल सिम्टम्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. क्यों मेंटल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो हमारा माइंड है वो क्लोजेस्ट है किससे? वाइटल फोर्स के. ओके, व्हेन द माइंड चेंजेस डिसीज हैज गॉन डीप.
इसको आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। तो अगर डिसीज़ आती है तो सबसे पहले क्या अफेक्ट करेगी? हमारे विल को, हमारे डिज़ायर्स को, हमारे अवर्जन्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को। अंडरस्टैंडिंग मीन्स आर थिंकिंग, आर जजमेंटल पावर। ठीक है, लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते हैं। देन एक पर्सनालिटी चेंज होती है, फियर आता है, एंगर आता है, एंजाइटी अपीयर होती है। बॉडी सिम्टम्स तो बाद में आते हैं। ओके, तो बिफोर पेन इन द बॉडी देयर इज कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। ठीक है, बिफोर पैथोलॉजी हमारी विल और अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब होती है। सो यही एक ट्रू बिगनिंग है किस चीज़ की? डिसीज़ की ट्रू बिगनिंग है। पैराग्राफ 7 में हैनमन सर सेज, केंट सर सेज लोकल डिसीज इज अ मिथ। यार ये मिथ देख के आई गॉट अ जस्ट अ थिंकिंग कि होम्योपैथी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। एक उस पर एक फन वीडियो बनाते हैं, लाइक पढ़ाई वाली वीडियोस तो बहुत हो गई राइट, वो बनाते हैं। तो अभी पढ़ते हैं हम पहले। लोकल डिसीज इज अ मिथ। नो लोकल डिसीज, ओनली लोकल एक्सप्रेशंस ऑफ जनरल डिसीजेस। कोई लोकल डिसीज जैसी चीज़ है ही नहीं, वो सिर्फ एक्सप्रेशन है, ओके। लोकल एक्सप्रेशन है जनरल डिसीज का। सो ट्रीटिंग लोकली, अगर हम लोकली उसको ट्रीट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सप्रेशन और पैलिएशन को इनवाइट कर रहे हैं। सो दीज टू टर्म्स ये फर्स्ट ईयर में ही बेसिकली पढ़ने वाली चीज़ होती है, बट स्टिल रिवाइज करवाते हैं। सप्रेशन इज समथिंग कि डिसीज़ दब गई है वो वाली, लेकिन वो बड़े रूप में बाहर आएगी। लाइक स्किन डिसीज़ है तो लंग्स के केस में बाहर आ सकती है वो। पैलिएशन इज़ लाइक वो डिसीज़ उस टाइम के लिए तो ठीक होगी, लेकिन वो सीवियर फॉर्म में बढ़ चढ़ के वापस आएगी। ठीक है, सो लोकल डिसीज़ एक मिथ है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अल्सर है तो अल्सर इज़ नॉट अ लोकल इशू। ठीक है, अंदर कुछ दिक्कत चल रही है ब्रो। ठीक है, सो कैन बोल्डली सेज लोकल डिसीज डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है? कि लोकल डिसीज एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने भी लोकल सिम्टम है इज ओनली द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ किसका? इंटरनल डिसऑर्डर्स का। ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है अटैक, वो अंदर के एक्सप्रेशन की वजह से हो रहा है। हम उसको क्या समझ रहे हैं? बाहर से चीज़ें आई हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस। बट गाइस डिसीज पहले से एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, ठीक है, टीबी हुआ है किसी को, तो यार उस फैमिली में सभी उस चीज़ के कांटेक्ट में आए होंगे, बट वो सिर्फ इस इंडिविजुअल को क्यों इफेक्ट कर रहा है? टीबी का वायरस सिर्फ इसके अंदर ही क्यों पाया, टीबी का बैक्टीरिया सिर्फ इसके अंदर क्यों पाया गया? राइट, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। बट व्हाट द मॉडर्न साइंस थिंक्स कि ये वायरस अंदर आया तब डिसीज़ हुई, बट हमारी बॉडी ऑलरेडी उस चीज़ के लिए ससेप्टेबल थी, ऑलरेडी वो डिसीज़ उसके अंदर पनप गई थी। ये तो बस आके उस चीज़ को और सीवियर कर रहा है। समझ रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लाइक इन केंट के उसमें ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि देयर इज़ अ पर्सन जिसने सारे टेस्ट करवा लिए थे, सारे के सारे, एक से एक रिनाउंड फिजिशियंस को दिखा रखे थे। एवरीवन सेज दैट यू आर नॉट सिक, सारी रिपोर्ट्स परफेक्ट हैं, बट दैट सिक पर्सन, द इंडिविजुअल स्टिल डिनाइज दैट, क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। राइट, उसको पता है कि ही इज़ नॉट वेल। तो उस केस में हमें क्या करना है? उसका अच्छे से केस टेकिंग करना है कि वाई इज़ ही फीलिंग दिस। मजाक तो कोई नहीं करेगा। राइट, सो यही है गाइस कि हमें देख के लग भी सकता है कि यार ये पर्सन सिक नहीं है, बट वो स्टिल सिक हो सकता है। ओके, पैराग्राफ 8 में सप्रेशन लीड्स टू डीपर, जस्ट अ सेकेंड, सप्रेशन लीड्स टू व्हाट? डीपर डिसीज। सो discomfort is pushed inwards cause of suppression। डिसीज अंदर पुश हो रही है बॉडी के सप्रेशन की वजह से, क्योंकि हमने सप्रेशन करवा दिया है। अब स्किन का मैंने एग्जांपल दे ही दिया है आपको कि वो लंग्स में जाएगी,
राइट। स्किन लंग्स में जा रही है, जॉइंट्स हार्ट में जा रहा है, ठीक है। क्रॉनिक इनक्योरेबल स्टेट डेवलप हो जाती है जिस वजह से, ठीक है। व्हेन सिम्टम्स आर सप्रेस्ड, डिसीज डजंट गो अवे, इट ओनली ट्रैवल्स डीपर, it only travels deeper. Okay, from skin to organs. Let me write this down. Skin to organs, organs to mind. ठीक है, yeah. So paragraph 9 and then paragraph 10 and that's it. ज़्यादा लंबा बोर नहीं करूँगी मैं आपको. Paragraph 9 says cure means restoration of order. क्योर क्या मतलब है? क्योर से हमें restoration of order. Vital force balanced again, equilibrium is established, symptom disappears, harmony is restored. Obviously अगर vital force balance हो रहा है, equilibrium में आ रहा है, तो जितने भी symptoms है वो सब disappear होंगे और body में harmony वापस से restore होगी. Cure सिर्फ symptoms को remove करना नहीं है, एक order में, like अगर mentally भी उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा भर गया था तो वो भी निकलना is comes under this cure, complete cure. Health is freedom at all levels, ठीक है. The cure is not just stopping pain या fever. Internally, ठीक है, internally जिस order में उसको चीज़ें develop हो रही थी, when the vital force free again itself, then actual cure is established. Remember this point. Now let's see its last paragraph. सो रोल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन क्या क्या है? पहले तो उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए टोटलिटी के बेसिस में, अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंडिविजुअलिटी को समझना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब पानी में भीग के उसको फीवर आया है तो हम इसको उठा के रेस्टॉक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं. दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ एथिकल, ठीक है. A true homeopathic physician does not chase disease. He studies the person who is sick and prescribes on the basis of what? On the basis of totality. So, केंट का पहला लेक्चर हमको क्या सिखा रहा है? एक गोल्डन ट्रुथ उसने हमको दिया है कि हमको एक मेन को ट्रीट करना है, ओके, ना कि डिसीज को. समझे? When we understand the sick, we understand homeopathic itself. So to have more such lectures, please like, comment, share and subscribe, and love you all. Bye bye.